नमस्कार, इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। इमर्जिंग बिजनेस फोरम इस बार हम सीजन 2 लेकर आए हैं और इस बार हमारे इस कार्यक्रम का नाम है इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम। ये दूसरा साल है। पिछले साल हम 13 शहरों में गए। उन 13 क्लस्टर्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हमने उसको जानने की कोशिश की और उन सभी बातों को हमने एक नेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए देश की जनता के सामने पहुंचाया। और इस बार हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट बिग लीप, यानी सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। इस कड़ी में 13 शहरों को हमने इस बार भी चुना है। 2 पड़ाव हमारे पूरे हो चुके हैं, अहमदाबाद और लुधियाना, जहां पर कि हमें जबरदस्त रिस्पांस मिला। काफी कुछ हमें सीखने को मिला, काफी कुछ हमने, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। इस बार आज ये तीसरा पड़ाव हमारा है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली इसलिए भी हमारे लिए खास है, एक तो देश की राजधानी है ही, साथ साथ ये देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कि अपने आप में एक अलग मायने रखती है। कई क्लस्टर्स, कई इंडस्ट्री राजधानी दिल्ली के आसपास फल फूल रही हैं। देश का एसएमई सेक्टर, ये वो सेक्टर है जिसे कि हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है, लेकिन अक्सर जब पॉलिसी बनती है तो शायद इसे इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इन्हीं बातों को अपने इस नेशनल प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम के जरिए हम पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का पार्टिसिपेशन होगा। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर मिस्टर समीर अहलुवालिया, एडिटर जी बिजनेस, फॉर द वेलकम एड्रेस। मैं चाहूंगा प्लीज तालियों के साथ स्वागत किया जाए। Good evening, everyone. First of all, please join me in welcoming the senior most member of Parliament of India, the 5-time Chief Minister and the Honourable Minister of Small and Medium Enterprises, the Honourable Mr. Veerbhadra Singh. A lot of my friends are sitting here. Sudhir Sethji is here from Sudhir Gensets, Suri Saab is here from Subros, and I just met a gentleman from Coco Berry, Bhalla Saab. इन्होंने 45 दिन से कोको बेरी नहीं खाई है, इसलिए इनका वेट थोड़ा गेन हो गया है. They are all success stories in their own right. And I'm sure all of you are success stories as well. We have a lot to learn from you. I'll just go back a little bit about Z-Business. Z-Business was launched with a single one objective only, that was to foster India's SME sector. We are partners with you. We want, in fact, Piyush Srivastava, who's hosting the show for you tonight, is perhaps the only journalist covering the SME space today, totally dedicated to it. He just covers SME. So Z-Business is we are being partners with you. We want to foster SME, the sector in the country, and we want to work with you in being able to do that. There are 2 issues which I'd like to dwell light on a little bit. One is the lack of a strong industry association for the SME sector. We've heard of FICCI, we've heard of CII, we've heard of more recently ASSOCHAM, which has sprung up, and all of them are voices of big businessmen. When I look at the SME sector, the only associations which exist are either divided by geography or the industry in which they operate. I think the SME sector needs a national level organization which has a very strong voice. As being from Z-Business, I can promise that Z-Business will be always there to support this kind of an organization so that the voice of the SME sector is also heard, even though the SME minister has done a lot for this sector, but I think a lot more needs to be done. Thank you very much for being here. Thank you very much for participating and attending in good numbers, and I wish the deliberation a lot of success. With these words, may I invite the Honourable Minister on stage to give the keynote address. The organizers of this meeting and all the distinguished participants who are actively participating in promoting this meeting, and friends. It gives me immense pleasure to be here at the Emerging Business Forum being organized by Z-Business. I am told that this forum provides a unique setting for engagement and exchange of ideas and enables SMEs to imbibe quality management processes and innovations for business growth. Production wise, the SME sector produces about 45% of the total production of the industrial production of the country, and
in export sector, the SME contributes about 40% of our total exports. So this is a big contribution. I think if I call it an engine of growth in the country, it will not be something, it will be the right expression to use. SMEs is not only in India, but worldwide play a very important role. So by this way, I hope that more and more industrial clusters will come up in the small sector, and more people will be able to get employment and also contribute to the wealth of the country. Thank you very much. Sir, you just said about the SMEs that they are really doing a great service to the nation. आपने कहा कि वो इंडस्ट्री को बड़ा प्रमोट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी टू वर्कर्स के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं. यू ऑल्सो सेड कि 40% ऑफ द एक्सपोर्ट SMEs से होती है. सो SMEs become a very strong part of our industry. Sir, but normally having been a part of SME myself long back, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम SMEs को आती है, कोई स्टार्टअप यूनिट को टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंस, वो फाइनेंस के लिए आपने कहा कि गवर्नमेंट ने ये किया है कि 100 lakhs विदाउट कोलेटरल. सर, आई थिंक आज की सिचुएशन देखते हुए 100 lakhs इज हार्डली ए अमाउंट, क्योंकि जब आदमी लैंड को ही लेता है और उसके बाद में इंडस्ट्री बिठा के मशीनरी लगाता है, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ 100 lakhs लुक्स टू बी प्रैक्टिकली नथिंग. आई थिंक गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि SMEs जो हैं वो यंग स्टार्टअप्स, टेक्नोक्रेट्स लगाते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड इंडस्ट्री की नहीं होगी. तो आई थिंक थोड़ा सा गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए टुवर्ड्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ नहीं करें, बट थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को माइंड में रखते हुए दे शुड ट्राई एंड पुश SMEs टुवर्ड्स दैट पॉइंट. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. पहली जो बात यह है कि जो आज डेफिनेशन है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की, दैट नीड रिवीजन, अपवर्ड रिवीजन, एंड वी आर इन द प्रोसेस. आज की जो डेफिनेशन है वो आउट ऑफ डेट हो गई है, और आज के हालात को ध्यान में रखते हुए वी प्रपोज टू रिवाइज द लिमिट्स ऑफ द 3 sectors, and I hope that will to great extent meet the requirements of the people who want to set up industry in this sector. मंत्री महोदय से यकीनन हमको काफी कुछ जानने सीखने को मिला. हमारे तमाम ऑडियंस के हमने सवाल भी लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे 2 ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने स्क्रैच से शुरुआत की और आज उन्होंने 700 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर अचीव किया है. और साथ साथ हम शुरुआत करेंगे अपने पैनल डिस्कशन की. कई देश के जाने माने एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ेंगे इस पैनल डिस्कशन में और बात करेंगे SME सेक्टर के लिए किस तरीके की होनी चाहिए फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी. और इसी के साथ इस वक्त कुंवर सचदेव हमारे बीच भी हैं. कुंवर, मैं चाहूंगा कि आप स्टेज पर आए और अपने अब तक की जो ये जर्नी है उसको हमारे साथ शेयर करें. खासतौर से आपने किस तरीके से अपना होमवर्क किया, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने किस लेवल से शुरुआत की और उसको किस लेवल तक पहुंचाया, इसकी सक्सेस स्टोरी लोगों को जानना बहुत जरूरी है. प्लीज. वो नाम है जो अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है. 1988 में कुंवर सचदेव ने सुकैम की शुरुआत की. कुंवर ने इस उम्मीद के साथ पावर बैकअप जैसे इंडस्ट्री में कदम रखा कि इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर एक नई शुरुआत की जा सकती है. कुंवर सचदेव ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन पैसे की किल्लत ने उन्हें हमेशा परेशान किया. जब मैंने कंपनी शुरू करी थी तो मैं अपने दोस्तों से उधार लेता था, क्योंकि अपनी जेब में पैसे थे नहीं.
और जितने भी दोस्त थे सबसे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में मैंने ज़रूर कर्जा मांगा हुआ है। और जब कंपनी थोड़ी ठीक चल रही थी तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने बिजनेस से ही मतलब उधार माल लिया और कैश में बेचा, तो वहाँ से कुछ जनरेट कर लिया। मतलब अपना एक विश्वास जमाया, पहले दोस्तों पे विश्वास जमाया, फिर अपने जो सप्लायर्स थे उन पे विश्वास जमाया और उनके पैसे से मैंने अपना बिजनेस रोल किया। फिर एक समय आया जहाँ पे मुझे बैंकों की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि मैं स्केल अप कर रहा था। तो बैंकों के पास गए और उस टाइम ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक थे, प्राइवेट बैंक ICICI ही सिर्फ आया था। सो गवर्नमेंट बैंक से लिया, पर देखा गवर्नमेंट से पैसे लेना बहुत मुश्किल था उस समय। बड़े सारे पेपर चाहिए थे, ये चाहिए था, वो चाहिए था, उनकी लिमिट बनाने में बहुत टाइम लगता था। सो वो भी काम किया और फिर धीरे धीरे बैंकों के साथ रहा और फिर इससे बड़ा हुआ तो फिर मैंने इन्वेस्टर से पैसा लिया। सो ये सारे फेजेस मैंने देखे धीरे धीरे कि बैंकों से कैसे डील करना है, इन्वेस्टर से कैसे डील करना है। बट सब कुछ एक ही चीज़ रही कि जो मेरा वो रहा कि उनका विश्वास जमाना सबसे इम्पोर्टेंट है। सही और सटीक प्लानिंग का कैम का टर्नओवर 750 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है और हर दिन कंपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है। पहले तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो, सख्त जरूरत ना हो, पैसे को लीजिए नहीं, क्योंकि पैसे से कभी पैसा नहीं बनता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी पैसा ज्यादा आया वेस्टेज हुई और ज्यादा प्रॉब्लम्स में आए। तो जितना पैसा चाहिए पहले तो उसको अपने ही जो इंटरनल एक्रूवल्स के साथ या जितने भी अपने कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना पैर पसारी है, जितना चादर के अंदर पैर पसारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे इतनी तवज्जो दी गई, दैट्स आई थिंक आई डोंट नो वेयर कैपेबल ऑफ गेटिंग दिस, बट फंड्स के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस आया मैं वैसे बोल चुका हूँ, क्योंकि फंड्स के बारे में ही बोलना है। तो जब मेरे पास ज्यादा पैसा आया तो मैंने जिंदगी में नीचे आया लाइफ में, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज जब ज्यादा पैसा आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जनरली लोग सब ढीले हो जाते हैं। लोग सोचते हैं यार पैसा आ गया, अब तो पैसा बैंक में मुझे लगता है जिसके पास बैंक में पैसा पड़ा है उसको काम करने की जरूरत, थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हमारे बैंकों में पैसा पड़ा हुआ हमें दिख रहा हो यार ये तो पैसा पड़ा है 10 करोड़ 20 करोड़ पड़ा है, तो हर आदमी रिलैक्स हो जाता है, यार पड़ा है यार, अब तो 2 महीने 3 महीने की तो कोई तकलीफ ही नहीं है। मतलब जो भी जिस हिसाब से भी सोचता है। सो मुझे लगता है कि जब तक छोटा बिजनेस था, ज्यादा अच्छा बिजनेस था, ज्यादा अच्छे कंट्रोल थे, ज्यादा पैसा कमाया। जैसे बिजनेस बड़ा हुआ, शोहरत बहुत मिली, शायद पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो गया। सो और बैंक्स के साथ अभी मेरे को सुनने में आया कि 1 करोड़ रुपया बिना कोलेटरल के है, लेकिन अभी मेरा जो बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मेरा घर भी अभी कोलेटरल पे है इवन टुडे, ऑल्दो वी हैव 200 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंक्स। सो मुझे लगता है कि अब मेरा विचार ये कि हमें डेट फ्री कंपनी करनी चाहिए। अभी सुधीर जी बोल रहे थे, ये बात मेरे दिमाग में भी घूम रही थी और मैं काम भी कर रहा हूं। सो हर फेज में एक फेज आता है जहां पे आप सोचते हैं पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलता है, जब मिलता है तो फिर और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम, फिर हर फेज में हम ना कुछ लर्न करते हैं। तो अभी जो मेरा थॉट चल रहा है वो ये चल रहा है किस तरह से कंपनी को डेट फ्री किया जाए। हमें बैंक से पैसा लेना ही नहीं है, बिकॉज आज की डेट में बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है जितना अल्टीमेटली वी एंड अप डूइंग बिजनेस फॉर बैंक्स। तो जो मैं पैसा कमाता हूं उसका 60% 50% तो मेरा बैंक ही ले जाता है। सो हर फेज के अंदर वी लर्न एंड वी इम्प्रूव अपॉन, और हर बिजनेस के अपने अपने एंगल्स हैं। आप लोगों की परेशानियां अपनी हैं, हम भी परेशानियों से निकले, आप भी परेशानियों से निकले, और हम भी अभी भी परेशानियों से चल रहे हैं। और मुझे लगता है जब तक हम बिजनेस करेंगे परेशानियां साथ ही रहेंगी, और जिसकी परेशानियां साथ में नहीं है इसका मतलब बिजनेस नहीं कर रहा है। आपकी कहानी बहुत अच्छी, बहुत हम सभी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आपके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आपने वो स्केल आपने अचीव किया है जिस स्केल पे हम सभी जाना चाहेंगे। लेकिन इसमें आकर डेट फ्री होने के लिए अब 200 करोड़ के ऋण की बात हो रही है,
तो अगर नॉर्मल एक्रूवल प्रोसेस से आप चलेंगे तो काफी वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपने कभी एसएमई एक्सचेंज या कभी आपने अपनी शेयर लिस्टिंग या उस माध्यम से कोई फंड रेजिंग करने के बारे में सोचा या सोच रहे हैं कि आप डेट फ्री कंपनी हो सकें और एक ऐसे 200 करोड़ रेज कर सकें जो आपकी इक्विटी का हिस्सा बन जाए और आपकी सक्सेस लोगों के साथ शेयर हो जाए? मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, ब्यूरोक्रेटिक होती जाती है, प्रॉफिट कहां जा रहा है, लॉसेस कहां हो रहे हैं, ये बहुत कम दिखता है। सो अगर हम फोकस करें कि हमारे पास क्या है और उसी पे हम कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एज यू ग्रो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कहने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम पिक्चर में आ जाता है कि एचआर है, केआरएज हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखें तो लोगों की एफिशिएंसी गिरने लगती है। सो इंटरनल में आप जाके, जैसे भी आप में से भी कोई एसएमई जो लगभग 100 लोगों से ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप एक्चुअली अंदर घुस के देखेंगे सिस्टम के अंदर, तो आपके सिस्टम में भी बड़ी खामियां आ चुकी हैं जो आप प्रॉपर एफिशिएंटली वे से काम नहीं कर रहे हैं। हमें पता होता है, लेकिन हम थोड़ा ढील छोड़ रहे होते हैं कि चल यार क्यों घुसे, दोबारा इस लेवल पे आ गए, दोबारा से जाके वही काम करना है। लेकिन हम सबको पता होता है वो एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। सो जिस लेवल पे मैं आके खड़ा हूं, मुझे लगता है कि हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम, स्ट्रक्चर्स और जो हमारी उधार देने के तरीके हैं उनको ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सो आई डोंट थिंक कि इंटरनल ओनली जस्ट, अभी सुधीर जी भी यही बात कह रहे थे, मेरी मतलब बहुत सारी थिंकिंग उनसे मिल रही थी कि कि एक स्टेज में आके आपको थोड़ा सा अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ता है, जहां पे आपको पता होता है कि ये चीज हो सकती है, बट आप थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसे बाजार में ऐसे अपनी पॉलिसीज करूंगा तो क्या होगा। बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई कैन सी देयर इज अ जो हम चाह रहे हैं वो हो सकता है। जी, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम द पैनलिस्ट? ऑन है सर, ऑन है। मैंने आपका ये कंपनी का जो इन्होंने शॉट लिए, देखने के बाद ये पता लगता है कि आपने कितनी मेहनत करी और कहां से इस कंपनी को यहां तक ले आए। लेकिन ये ग्रोथ प्रोसेस कभी रोकना नहीं चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए एक डेट इक्विटी। वी हैव टू सी नाउ ग्रोथ मैनेजमेंट कैसे करना। ग्रोथ मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए क्या फंड्स चाहिए, क्या इंटरनल अक्रूवल है, क्या फंड्स बैंक से चाहिए, क्या इंस्टीट्यूशन से चाहिए, वो उसको, और उसके लिए आगे क्या हमारी प्रोडक्शन और क्या आगे कस्टमर बेस है और उससे इंटरनल अक्रूवल क्या आएगी, हाउ टू मैच अप दैट। अगर वो प्रोसेस अगर आपका मैच करता है तो ये प्रोसेस आप जारी रखिए, जिस तरह आप यहां तक लाएं, इसको आगे कुछ सालों में इसको डबल तक ले जा सकते हैं अगर उसका कोई ऐसा रास्ता निकाल के मैनेजमेंट करें, और उसको आगे ले जा सकते हैं। जैसे इन्होंने ठीक कहा कि इसको इक्विटी में अगर ले जाना चाहें तो आप इक्विटी उसकी बढ़ा के, अगर कोलेक्ट्रल की जगह इक्विटी बढ़ाएं तो दैट विल बी मच बेटर। डिस्कशन जो हो रहा था, ज्यादातर अगर मैं फ्रेज करना चाहूँ, यू टॉकिंग अबाउट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो इट्स एन ओपन क्वेश्चन टू एवरीबडी, विच वन इज अ बेटर स्ट्रैटेजी टू टेक। आप ज्यादातर ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं करना चाहते, बट देन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग मनी एंड देन ग्रोइंग, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट ऑन योर ओन। सो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने जिंदगी भर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ही करी है, तो आप मेरे से सुनिए, मेरी हमेशा से इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है और मैंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के नुकसान देखे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ सपना बहुत अच्छा है, होना चाहिए, वो भी चलेगा साथ में। और मैं अभी भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मैं ग्रोथ को रोकने की बात नहीं कर रहा। डेट फ्री कंपनी डजंट मीन दैट आई विल नॉट ग्रो, आई विल ग्रो मोर देन व्हाट आई वाज ग्रोइंग अर्लियर। सो मतलब आप ये सोचते हैं कि डेट फ्री होने का मतलब है कि आप ग्रोथ नहीं करेंगे। हमारा ब्रांड है यार आज बाजार में। अगर मैं आज डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूं भाई उधार से कैश में आ जाओ, तो क्या टाइम लगता है? वो हमारे लोग डरते हैं, नहीं सर ये करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। सो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आई वांट टू टेल यू आई विल ग्रो मोर बाय माय सिस्टम्स नाउ। सो एक स्टेज के बाद सिस्टम चाहिए। सो व्हेन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकली मैं यहां बोल रहा हूं आपको, हमारे सिस्टम की ध्वजियां उड़ी होती हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही होती है, लोग आ रहे हैं, पता ही नहीं किसको लिया, उसको कोई मॉनिटर करने वाले लोग नहीं है। सो इट्स, पहले मैं गवर्नमेंट के बारे में सोचा, मैं इस वक्त गवर्नमेंट कैसे, हम साले अपनी कंपनी नहीं चला सकते तो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इसको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
I mean, it's such a huge structure, and still it works. Still it works. इसके बाद एक और केस हमारे साथ है। हम हालांकि अपने टेक्निकल लैंग्वेज में से केस स्टडी कहते हैं, लेकिन एक और एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में हैं जिनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। इन्होंने देश का पहला केपीओ शुरू किया और इसके बाद उस बिजनेस से बिल्कुल इन्होंने अपने आप को डाइवर्ट करते हुए एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसमें को शायद हम और आप कभी ना कभी हमने उसको टेस्ट जरूर किया होगा। हमारे बीच इस वक्त है जीएस भल्ला साहब, जो कि जिन्होंने शुरुआत की कोको बेरी की। जीएस भल्ला साहब, चाहेंगे कि आप प्लीज स्टेज पर आए। First correct you, Piyush, there's no 300 crore fundraise. I think that's a widely exaggerated amount. But yes, we did undergo a recent equity infusion by private equity investors in our company. I think largely the journey of an entrepreneur is pretty much the same. So I think the parameters, circumstances change over time, but the journey pretty much remains the same. My story is pretty similar to what Kumar's story would be, or Suri Saab over here, or Sudhirji's, because you always have to start with at some point. So yesterday I was doing an interview with Mint, and the journalist asked me, so what's really a good time to start a business? I said the best time to start a business is now. You need to put a stake in the ground and say, yes, I'm going to do it. And then you need to figure out a way how to do it. So, usually I had the privilege to go to a couple of good business schools to get some sense of what entrepreneurship really is. So in one word, the definition of entrepreneurship is the relentless pursuit of opportunity without resources currently controlled. So basically what that means is, the first thing most people think about being entrepreneurs is about access and availability to capital. So जब भी आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं कि मैं इसमें पैसा कैसे लगाऊंगा। दूसरा, most people are very risk averse. They feel that if I choose the path of an entrepreneur, then the risk is much greater than me taking a safer bet and picking up a job. My story is pretty similar, like I said, with any entrepreneur. I started with 10,000 rupee loan from my mother, and I took up a distribution right out of college of some paper product companies. Built it very successfully for 4 or 5 years. I had generated enough capital, so there's a little difference between how my journey has been. I've pretty much remained debt-free for, until now. And I'm not saying that debt is bad. I think debt is necessary if you can service it. But like Kumar pointed out, I think you need to be very, very careful about your resources that you have, especially capital that you have. And like somebody rightly pointed out, easy come, easy go. So if you have access to a lot of capital, you will have a tendency to become a little lax and take decisions that are not the best possible decisions and will not achieve the best possible outcome for your business. So from that perspective, one should... Especially भल्ला साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से अपना वो होमवर्क किया फाइनेंसेस के लिए, जैसे आपने अभी रिसेंटली पैसा रेज किया है कंपनी के लिए. ओके, वी नॉट आस्किंग फॉर द अमाउंट, बट उसके लिए आपको होमवर्क किस तरीके का करना पड़ा? अगर एक नॉर्मल एक छोटा यूनिट अगर इस तरीके से फंड रेज करना चाहे तो किस तरीके के होमवर्क की जरूरत पड़ती है इसके लिए? आप डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ कैपिटल दैट यू आर प्लानिंग टू रेज. Whether you're looking at private markets or public markets, or you're looking at bank debt, I think documentation is something that is very important. You need to have a strong, robust business plan supported by demonstrable revenues on the ground. So it has to be a proven concept. Other than that, आपको अगर एक concept पे पैसा raise करना है तो the only way to do it is, I don't think bank financing is the way to go. I think you would need to look at angel financing. You said that basically you're trying to make your company a debt-free, or your company is debt-free, and you were primarily coming in from that debt should be taken only when you can service it. Otherwise, it's good to keep your company without debt, because obviously debt has to be serviced. Now, this is probably you're doing right now, but as you grow, you probably could realize that debt also is an important part of an organization. And yes, servicing the debt
one has to keep in mind the profitability of the organization. So if you pick up a debt, you need to keep your top line and bottom line both in mind. Then only can you service the debt. What do you feel is the roadmap for you for the future of your organization? I personally don't look to debt as an evil trap that one would get caught in. I think it is a form of financing. And if you are capable of, or you, unfortunately in India, you can't possibly raise debt without collateral. So it's more of a pipe dream for a young entrepreneur to go out and say, well, I'm going to raise debt without collateral, despite, there might be some schemes that exist out there in the market. The only way to finance small, young enterprises would be to look at private markets. Now that being said, if you have, and you rightly pointed out, if your balance sheet can support debt servicing, I think that is a great form of capital raising, because I think it's the cheapest form of capital. Equity is the most expensive form of capital, so you need to be mindful and you need to be careful about what you dilute in terms of equity. If your organization, and we feel the same thing, that if our organization from a cash flow standpoint can support debt as we grow, I think that would be a preferred mode of financing, and that I think should be the case for all organizations growing or large scale. चलिए, ये तो थे दो एंटरप्रेन्योर्स आपके बीच से ही जिन्होंने की स्क्रैच से शुरुआत की और आज इन्होंने एक अच्छा खासा टर्नओवर अचीव किया है और ये स्मॉल से मीडियम सेगमेंट में तो आ ही चुके हैं और लार्ज की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जब बात फाइनेंस की होती है तो एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर अगर फाइनेंस चाहिए तो किस लेवल पे आकर फाइनेंस की जरूरत कंपनी को पड़ती है और किस लेवल पे आकर फाइनेंस के लिए ऑप्शंस, विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। अपने पैनलिस्ट से इस सवाल को मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले रमेश सूरी साहब से, किस लेवल पे आके कंपनी एक स्टार्टअप है, उसने बिजनेस शुरू किया, आखिर उसको किस लेवल पे आके अब फाइनेंस के तमाम विकल्पों की तरफ देखना चाहिए? ये तो बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका आगे कितना उसको आगे लेके जाना है और उसका प्लान 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का क्या प्लान है हमारा और कितना आगे बिजनेस का स्कोप है और उसके लिए कितनी फंडिंग चाहिए, आपके पास इंटरनल अप्रूवल क्या है, आपके पास अपने रिसोर्सेज क्या है एंड और सपोर्ट क्या चाहिए फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की और बैंक की, उस बेसिस पे वर्कआउट करके देन फाइनेंस का इंतजाम किया जाना चाहिए। वेल, मेरा विचार फाइनेंस के बारे में थोड़ा स्ट्रांग है। मैं हमेशा एडवोकेट ये करता हूं कि फाइनेंस जब ले आदमी तो वन मस्ट कीप हिज आईज एंड ईयर्स एब्सोल्युटली ओपन। फाइनेंस लेना तो बड़ा अच्छा लगता है, बट एज आई वाज टेलिंग कोवर एंड मिस्टर भल्ला व्हेन वी वर टॉकिंग, देखिए उसको मैनेज करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, आप इंडस्ट्रियलिस्ट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू। एसएमईज जैसे स्टार्टअप यूनिट्स होते हैं, हम भी एक टाइम पे ऐसे ही स्टार्टअप किए थे। हम एक नेशनलाइज्ड बैंक से डील करते थे, उनका हेडक्वार्टर्स कहीं साउथ इंडिया में था, कुछ लाख रुपए लेने होते थे तो वो भी वहां जाके 3-3 दिन कैंप करके लेके आते थे। उसके बाद में हमारी कोर टीम ने डिसाइड किया कि हमको बिजनेस को पोजीशन करना चाहिए। नाउ व्हाट इज पोजीशनिंग? पोजीशनिंग इज वी शुड हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड बैकअप द क्वालिटी प्रोडक्ट विद सर्विस। अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे हमारी एक ब्रांडिंग हो जाती है। अगर ब्रांडिंग हो जाती है तो उससे मार्केट के अंदर हमारी वैल्यूएशन हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली एनी स्टार्टअप यूनिट, एज आई सेड, इंक्लूडिंग हमको बैंक से जाके फाइनेंस लेना पड़ा, बट वाइल वी वर कंडक्टिंग आवर बिजनेस और हमने अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग में एस्टैब्लिश की, अपनी वैल्यूएशन एस्टैब्लिश की, उसके बाद में you find that you are able to realize the price for the business what you are conducting. Otherwise, in a cutthroat competition, you generally say that you are not able to realize the price. If you don't realize the price, then the cost of finance, what you have, and as I was talking to my friends here, as you build the organization, you grow the organization, the overheads, they have to be kept in mind. So fundamentally in every organization, what all of you people should understand, because I would like
कि एसएमईज आगे ग्रो करके और ऊपर निकल के आए. दिस इज द वे आई वुड लाइक इट, बिकॉज एक टाइम पे हम ही उसी कैटेगरी के लोग थे. Ultimately, I would request all of you to keep in mind whether you have a turnover of 50 crores or 1,000 crores or 1,500 crores. There is no point having a top line if you do not have a good bottom line. आपसे अब लगातार आप लोग डे टू डे बेसिस पे हजारों एसएमई से आप डे टू डे आपका इंटरेक्शन होता है. जब फाइनेंस की बात होती है तो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं और बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं एसएमईज के लिए जब बात फाइनेंस की हो तो? Piyush, what I strongly believe is finances are available, all kind of finances are available, whether it's debt, whether it's equity. As Honorable Minister Saab also said, there's a credit guarantee scheme up to 1 crore which is available, collateral free, without any third party guarantee. That's also available from nationalized banks, all the commercial banks. It's purely a function of what stage of business you are at, right? That's primary. लेट्स से स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है जिसने बिजनेस अभी शुरू किया, उसका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास पहुंचा है अभी, और उसके बाद अब उसे फाइनेंस की तलाश. तो बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस जो हमारे साथ इस वक्त हैं वो भी इस दायरे में और इससे ऊपर अब आ चुके, तो उस रेंज में आकर उनको बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्या अब होना चाहिए जिसको उन्हें टारगेट करना चाहिए? फाइनेंसिंग फ्रॉम द बैंक, रेजिंग डेट फ्रॉम द बैंक्स इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. That's what I believe. But I just want to deviate and slightly add on to this. I think commercial banks in India, right, they've traditionally been helping SMEs on the lending side, on the debt side. They need to come out now on the equity side. And what I mean to say by that is, on one end of the spectrum, they have HNI customers, right? They have customers like Suri Saab, Sudhir Saab, right? And there are ideas available with startups, with people who have graduated from good MBA schools, right? They have beautiful ideas, they have good process orientations, right? So the banks should take the lead in getting all these together, right? And having some kind of a venture funding or some kind of a seed funding available to these smaller entrepreneurs, right? Which is a very good way of funding. राकेश गुप्ता साहब हमारे साथ, आप CFO हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं आप कंपनी के. क्या जब बैंक चूज करना चाहिए तो बैंक चूज करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बेस्ट ऑप्शन क्या हो इसके लिए तलाशनी चाहिए कैसे? Actually, when we start a business, you start dealing with a bank in a normal course of business. That bank is the best bank whom you should approach for your funding needs, because he understands your business, he understands your cash flows, he understands what your needs are, how your cash flows are happening, and that way, if you approach your regular banker, that will be the best possible thing. Okay. राजीव चावला साहब भी हमारे साथ हैं. लक्ष्मण, आपसे हमारा एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव सवाल है जो कि हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दें, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा राजीव चावला साहब से. राजीव, अभी ऑडियंस में से किसी ने हमारे माननीय मंत्री महोदय से भी सवाल किया कि जो क्रेडिट फ्री, गारंटी फ्री लोन की जब बात होती है तो 1 करोड़ तक की लिमिट होती है, उसको बढ़ाना चाहिए, वो अपनी जगह है. एक सवाल ये भी था कि वो लोन मिलता ही नहीं है, क्या ऐसा है? 6 लाख से ज्यादा लोन इस देश में बिना कोलेटरल गारंटी के इस स्कीम के तहत कवर हो चुके जी. तो 6 लाख एंटरप्रेन्योर्स तो इस देश के ऐसे हैं जो इस बात को विटनेस करेंगे, वाउच करेंगे कि ये लोन मिलता है. आप पर्टिकुलरली मुझसे बात करें तो मैं बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिन्हें इस तरह का लोन बैंक से मिलता है. क्या ख्याल क्या रखना चाहिए, आखिर कहां पे एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं अपने आप को प्रोजेक्ट करने में? जी, इंपॉर्टेंट चीज, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्या मैं क्रेडिट वर्दी हूं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को, जो कि हमारा ड्रीम होता है, उस ड्रीम को हम कैसे एक वर्क प्लान में शेप देते हैं, और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को उनके सामने रखते हैं कि वो उसमें आके हिस्सा बने, उसको फंड करें. तो मुझे लगता है कि सभी एंटरप्रेन्योर्स को, इनफैक्ट स्टार्टअप्स के लिए भी एक प्रश्न पूछा गया कि स्टार्टअप के पास, क्योंकि नया काम है तो उसके पास इनकम टैक्स की रिटर्न्स नहीं है, तो उसे कैसे लोन मिलेगा? तो एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है, उसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट. और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी जो ड्रीम है, हमारा जो ख्वाब है, जो हमारा प्लान है, उसका एक माध्यम, एक राइट स्ट्रैटेजी है, एक रोड मैप है. और यदि एंटरप्रेन्योर्स चाहे एक्सपर्ट एडवाइस लेके या अपनी क्षमता के आधार पर उसको लिखें
और किसी भी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दें तो 1 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल गारंटी के मिलता है और 6 लाख से ज्यादा केसेस हैं और बात प्राइवेट या सरकारी बैंकों की नहीं है, सभी को ये गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। आपकी रिपोर्ट प्रॉपर है, कम से कम अगर आपका बिजनेस प्लान साउंड हो, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर है, आप अगर स्टार्टअप है तो, और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, आपकी ऑलरेडी यूनिट चल रही है, आपकी बुक्स अगर प्रॉपर है तो यकीनन लोन मिलने में इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक यहां पर हमेशा सवाल उठता है कि सर्विस सेक्टर के लिए जब इस लोन की बात होती है तो कहीं ना कहीं बैंक थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो मंत्री महोदय हमारे बीच इस वक्त यहां बैठे हुए, जिनसे कि हम गुजारिश करेंगे कि जब भी वित्त मंत्रालय के सामने अगर हो सके तो इस बात को जरूर रखें कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत ये जो लोन मिलता है उसके लिए सर्विस सेक्टर की जब बात हो तो थोड़ा सा बैंक लीनियंट अगर हो जाए तो एंटरप्रेन्योर्स को काफी मदद मिलेगा। पीयूष जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटरप्रेन्योर्स को यह भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि एक फिस्कल डिसिप्लिन, जैसे सभी डेट सर्विसिंग की बात हो रही है कि जो लोन लिया उसको चुकाना भी जरूरी है, तो फिस्कल डिसिप्लिन अपने वर्किंग कैपिटल को, जो रॉ मटेरियल का धन है, उससे अपनी फिक्स्ड एसेट्स में इस्तेमाल ना करें। आमतौर पे होता है कि हम रॉ मटेरियल का पैसा या वर्किंग कैपिटल सीसी लिमिट्स है उससे कोई मशीन लेके ऐड कर लेते हैं। सर ये तो आपने फिर भी बहुत टेक्निकल बात बताई। सबसे बड़ी चीज है कि बिजनेस का पैसा बिजनेस के लिए लगा के रखना चाहिए वो सबसे बड़ी चीज है। लक्ष्मण, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जब हम इनसे मिलने गए थे क्लस्टर में तो भी बहुत सारे लोग थे जो कि आपको सुनना चाहते थे, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ये एसएमई स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कर रहा है। क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज, कैसे इसके जरिए पैसा मिल सकता है? यू आर राइट, एक्चुअली इवन 5-10 करोड़ की टर्नओवर जो है ये एसएमईज भी लिस्टिंग के लिए आ सकती है, ये भी आईपीओ ला सकती है, ये भी फंड राइज कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेट के बाद एक्चुअली रेगुलेटर्स ने भी काफी स्टेप्स लिया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी काफी स्टेप्स लिया है। अभी करीब 35-40 कंपनीज का आईपीओ ऑलरेडी रेडी हो रहा है, ऑलरेडी 8-10 कंपनीज का ऑलरेडी आईपीओज भी रेडी हो चुके हैं, वो प्रोसेस में है। हम लोग अप्रूवल देने वाले हैं अभी ये महीने में, और अगले महीने में जिसे ऑनरेबल मिनिस्टर तो इधर है ही, फाइनेंस मिनिस्टर से भी कंसल्ट करेंगे और हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जी। तो इसमें ये कोई जरूरत नहीं है कि कुछ मिनिमम कोई कंपनी का टर्नओवर कुछ हो, इसमें जो भी है मैक्सिमम ये रखा गया है 25 करोड़ पेड अप कैपिटल तक एसएमईज जो है BSE एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है, अप टू 25 करोड़, अप टू 25 करोड़। और मिनिमम साइड में आईपीओ में मिनिमम 50 इन्वेस्टर्स होनी चाहिए एंड ईच इन्वेस्टर मिनिमम 1 लाख लगाना चाहिए, मिनिमम आईपीओ 50 लाख का भी हो सकता है। चलिए, ये तो बात ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, एसएमई स्टॉक एक्सचेंज इस प्लेटफॉर्म पे, इस पे हमारे तमाम ऑडियंस में सवाल यकीनन है। हम चाहेंगे कि आप ये सवाल करें, क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू करें। उसके पहले मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सुधीर सेठ साहब से। सर, जब फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी की बात होती है एक स्मॉल यूनिट के लिए, मीडियम यूनिट के लिए, तो वो फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी किस तरह से इन यूनिट्स को डिसाइड करनी चाहिए, कैसे तय करनी चाहिए? हम तो ये एडवाइस करेंगे कोई भी स्टार्टअप या न्यू यूनिट को कि हर यूनिट की फंडामेंटली रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट से निकलती है। सो जब आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ये यूनिट के अंदर आपकी नीड क्या है, या आपकी नीड 1 करोड़ है, या आपकी नीड 5 करोड़ है, या आपकी नीड 10 करोड़ है। जब आपको अपनी नीड मालूम पड़ जाए तो उसको नीड को देखते हुए आपको अपना फाइनेंस प्लान करना चाहिए, और फाइनेंस के अंदर आपके पास क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसको छोड़ के उसके अलावा आपको क्या बोरोइंग करनी है। बिकॉज लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू पीपल, इनिशियली जो भी स्टार्टअप यूनिट है उसको तो जाके बैंक से बोरो, बट स्टार्टअप यूनिट के लिए मेरे ख्याल से आपकी जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको लेके ही लोन करें। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा एक्सटेंसिव लोन ले लें, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो कंफर्ट भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा है कई बारी, टू बी वेरी फ्रैंक, कई इंडस्ट्रीज को देखा है कि अगर उन्होंने बोरोइंग ज्यादा कर ली, वो बोरोइंग से एकदम से आपको हाथ में पैसा तो नजर आता है, पर वो पैसा कई बारी जो है उसका यूजेज जो कि आइडियलिस्टिक वे में होनी चाहिए वो नहीं होती है, और उससे पैसा कई बारी लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो आई वुड एडवाइज यू पीपल टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज आफ्टर ऑल जो पैसा आप बोरो कर रहे हैं वो आपको पे तो करना ही है, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। काफी इंटरेस्टिंग इस वक्त डिस्कशन है, लेकिन कई ऐसे सवाल है कि आखिर जब बात फाइनेंशियल प्लानिंग की हो किसी स्टार्टअप के लिए, तो किस तरह से उसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, किस
कड़ी पर आकर उसको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए और बैंकों को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम जानेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट की राय, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए इसी के साथ हम फ्लोर ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। जी मेरा राजीव चावला जी से एक छोटा सा सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ, लार्जली जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग भी किसी भी फोरम पे जाके कहते हैं जी कोलेटरल फ्री लोन नहीं मिलता, वो लार्जली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो 6 लाख में से कितने लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसका क्या आंकड़ा आपके पास अभी है या आप इस आंकड़े को दिला सकते हैं? देखिए, ऐसा मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जिनको कोलेटरल फ्री लोन्स मिला है। इस सवाल का जवाब के लिए मेरे ख्याल से हमारे साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के जनरल मैनेजर सोनी साहब यहां पर इस वक्त बैठे हैं, उनसे इसका जवाब। सर, एक बड़ा सवाल है कि पब्लिक सेक्टर बैंक हमेशा बड़ा लीनियंट, बड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं इस लोन को देने के लिए। तमाम सवाल ऑडियंस आपके सामने है, आप क्या कहेंगे इस पर? It is absolutely correct that these days we have this that up to 10 lakh we have not to insist on any guarantee or any security even if it is offered, and up to 100 lakh we have to give the loan even without क्या मिल पाता है? Yeah, we are giving emphasis on it and we are very aggressive on it, and rather we have entered into the MOU with FSIA wherein we have rather been seeking the loan applications from them off and on, we have been reminding to them. मेरा नाम कीर्ति लाल है। आई कम फ्रॉम मिक्स बैकग्राउंड, पब्लिक पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ आजकल। एक सवाल है, सॉरी सर आपका नाम याद नहीं है, जो बीएसई एसएमई के सीईओ हैं, मिस्टर लक्ष्मण। सॉरी, हाँ, आपके लिए एक सवाल है। बीएसई इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन डिफरेंट पीपल व्हेन यू गोइंग फॉर एन आईपीओ, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। कैन यू डू द सेम रोल विद इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज? जैसे अगर मैं पूछूं कि अपने देश का कोई नेशनल क्रेडिट पॉलिसी है where everybody understands SME का ये प्रेरोगेटिव है, फिनेंस जानता है कि अच्छा ये पॉलिसी के तहत हम ऐसे करना चाहिए, और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी सबसे पहले एक है या नहीं है? इज देयर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन दैट? द सेकंड इज, कैन यू प्ले द रोल ऑफ दैट फैसिलिटेटर? Definitely, I mean, after we successfully launch this SME exchange, make it popular parent, at some stage we will definitely work with the ministry. I am a public servant basically. I mean, with 15 years experience in the from civil services, and with a background of IIT and IIM, and I was also a managing director of a PSU earlier. And with all my experience, probably I will definitely try to support in various policy making formulations and those things also. Thank you. We will do something. I am Ravi Vasudeva from Faridabad. मेरा सवाल लक्ष्मण जी से एक होगा कि एमएसएमई सेक्टर का, ये तो आप सभी मानेंगे कि 2 ही रूट, और किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए 2 ही रूट है फंड रेजिंग के, या तो उसका कैपिटल इक्विटी रूट है या डेट रूट है। अब अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, इक्विटी रूट जो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक्सचेंज माध्यम से आने वाला है, तो लक्ष्मण जी आपने कोई टेबुलेशन जरूर की होंगी कि इसका इनिशियल कॉस्टिंग, अगर इस मैं रूट में जाना चाहूंगा तो वो लगभग किस परसेंटेज से आप अनुमान लगाएंगे कि टेबुलेशन होगा? जी, कास्ट वाइज देखा जाए तो कास्ट, मैं तो बोलूंगा कि मेन एक्सचेंज के जो आईपीओ कास्ट है उसके कंपैरिजन में 1-2 परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट एक एडिशनल कास्ट जो एसएमई एक्सचेंज है वो मार्केट मेकिंग के चलते हैं। 3 साल मार्केट मेकिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मर्चेंट बैंकर के लिए, और जो बड़े एक्सचेंज के बड़े मेंबर जो मार्केट मेकिंग करेंगे उसका कास्ट एडिशनल कास्ट है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, जो आज की जो मेन एक्सचेंज की आईपीओ मार्केट में जिस तरह की हालत है, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो फंडिंग आ रही है ये लॉन्ग टर्म फंडिंग है, तो स्टेबिलिटी भी रहेगी, और एक मार्केट मेकिंग का बस कास्ट एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी मोर और लेस। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम फिलहाल यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम का अगला पड़ाव है आगरा में, जहां कि क्या होने चाहिए, क्या किस तरीके से एचआर सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, किस तरीके से एचआर प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आगरा में। तो हमारे साथ जुड़ना न भूले। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम के नाम से आप हमें फेसबुक पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, हमें एसएमएस करें EBF 57575 पर अपना नाम और अपना एड्रेस हमें जरूर एसएमएस करें।
The success mantra in our industry is because of honesty, sincerity and the hard work, which is as a principle we have adopted it. Honesty because of we have not bribed for our business, we have not bribed for any statutory inspectors. Sincerity is every worker starting from a chairman to watchman, our dedicated service has been rendered into the industry. And the success has come because we have such kind of principles at business where no principles are broken by any of our staff or even by worker. Worker is been given such a kind of a mentality and a mind structure in their mind that they belong to the industry and they don't belong to themselves. Because they work a dedicated service in the shop floor, I get the best quality because they believe they are working for themselves as their own family concern.